Jai Hind. In this lecture, we will discuss about waves. This is a basic and fundamental chapter on which heat waves, light waves and sound waves are dependent. So, in this chapter, we will discuss about what is a wave, what are different types of waves like mechanical, non-mechanical and matter waves, and longitudinal and transverse waves. So, we will discuss it briefly. Basically, wave is a disturbance which propagates or helps to transfer energy, but the material medium from which it is transported, the material medium is stable only, means it is not transported or it is not transfers its position from one place to another. So basically wave is a disturbance which transports or which propagates energy but not the material medium. इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, so due to vibration the sound energy is coming out. साउंड एनर्जी जब आ रही है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई वेव है जो डिस्टर्बेंस है. अब वेव्स यहाँ पे ऐसा क्या एक्ट कर रही है, जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट हो रही है और वाइब्रेट होके वो चीज़ एनर्जी को आगे प्रोपोगेट कर रही है. लेकिन एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद अपनी पोजीशंस चेंज नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं. लाइक व्हाट आई सेड, इफ़ इट इज़ माई माउथ, आई एम स्पीकिंग हेयर. So what is happening here? Air is a medium which propagates energy. So this is air molecules. So what happens, like if I talk about this molecule, it is molecule A and this is molecule and it is molecule B. So what happens when I speak, then sound energy gets transported to this point A or this air molecule. So this air molecule starts to vibrate in different directions. After vibrating, it passes its energy to molecule B and simultaneously molecule B starts vibrating and molecule B transfers energy to molecule C. What is happening here, like molecule A does not change its position, it just go to and fro or back and forth and maintains its stable position. So therefore I said that wave is a disturbance which propagate or transfers energy but not the material medium. Means the material medium here, like here in this case it is air. So air molecules are vibrating in its own position but they are not changing its position. So wave is a disturbance which propagates energy but not the material medium. Like I am tapping here or knocking here, so the sound is traveling through this whiteboard only, but this whiteboard small constituents or very small constituents are just vibrating, they are not transporting or they are not changing their position. So it is called as wave. So wave basically is a disturbance. So after knowing about wave, I will tell you about different types of waves. Before that, there is one example which you will find very helpful to know about waves. So example can be like, if I drop a stone in water, it is a stone in water. So what happens here, waves are generated. So what happens is, if you place a cork on it, cork means tree bark or feather. So what happens कि ये जो feather या cork रहेगा ये सिर्फ ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा, ये अपनी पोजीशन ये वाले ऑर्बिट में लाके ये वाले पोजीशन में नहीं आएगा, ये चीज़ सिर्फ ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेंगी. और जैसा अगर यहाँ कॉर्क रखे तो ये चीज़ यहीं पे स्टेबल रहेंगी, सिर्फ ऊपर और नीचे रहेंगी. कॉर्क मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वेव वही डिस्टर्बेंस है, एनर्जी तो प्रोपोगेट कर रही है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू टेल यू about wave. Now let's talk about different types of waves. So basically waves are categorized into two different things. The first is on medium. The first is on medium and the second is on vibration of medium.
ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि एक मीडियम पे डिपेंड है एक वेव्स, और दूसरी टाइप की वेव्स जो है वाइब्रेशंस पे डिपेंडेंट होती है। तो एक्चुअली मीडियम मतलब क्या? मीडियम मतलब वो चीज़ जो मदद करेंगी एनर्जी को आगे प्रोपोगेट करने में। एयर एज अ मीडियम, हेयर दिस वाइट बॉडी इज एक्टिंग एज अ मीडियम। सो ये मीडियम है, ये सारी चीज़ें। तो अब मीडियम के अनुसार इफ़ अ वेव रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट्स इट एनर्जी, देन इट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। इफ इट ट्राई टू means if it propagates energy through medium। जैसे मैंने बताया अभी आपको साउंड वेव्स, जहाँ मैं बोल रहा हूँ और आप सुन सक रहे हो, तो साउंड वेव्स को मेरी जो एनर्जी कैरी कौन कर रहा है? यहाँ एयर कैरी कर रही है, यहाँ पे वो वाइट बोर्ड कैरी कर रहा। तो साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव, बिकॉज इट प्रोपगेट्स एनर्जी थ्रू मीडियम। मीन्स मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट एनर्जी। Example can be sound waves. Waves on water, waves on strings, या स्ट्रिंग वेव्स भी बोल सकते हैं इसको। इन सबको क्या लग रहा है? मटेरियल मीडियम लग रहा है। यहाँ पर मीडियम क्या हो सकती है? एयर हो सकता है, या कोई भी सॉलिड चीज़ हो सकती है। यहाँ पे हो सकती है वो, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे वो चीज़ स्ट्रिंग है। तो ये मैकेनिकल वेव हो गई, क्योंकि ये वेव्स को मटेरियल मीडियम लगता है प्रोपोगेट होने को। सेकेंड वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves. These waves are opposite to these mechanical waves. These wave does not require material medium to propagate energy. Does not require material medium to propagate energy. To propagate energy. यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो वेव्स है इनको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ना इनको एयर की ज़रूरत पड़ती, ना सॉलिड की ज़रूरत पड़ती, ना लिक्विड की ज़रूरत पड़ती, ना ही गैस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वेव्स वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकती है एनर्जी। लाइक लाइट वेव्स को कभी भी मटेरियल मीडियम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी दिखती है हमें लाइट वेव्स। इंफ्रारेड लाइट वेव्स एक होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा मैंने। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देयर इज अ स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन दिस स्पेक्ट्रम देयर इज विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, देन यूवी लाइट, ऐसे कई तरह की लाइट्स होती है। तो वो जितने भी इसमें आते हैं वो स्पेक्ट्रम में, हम वो लाइट के चैप्टर में देखेंगे, तो वो सब भी वेव्स आती है नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, एक्सेट्रा। सो ये सब है नॉन मैकेनिकल वेव। अब जो वैक्यूम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट इट डाउन, कि एनी ऑफ दीज लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनी ऑफ द रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द स्पीड ऑफ देम इन वैक्यूम इज द सेम। स्पीड ऑफ देम इन वैक्यूम इज द सेम होता है, ठीक है। देन थर्ड इज अबाउट मैटर वेव्स। मैटर वेव्स बेसिकली ये हायर स्टडीज़ में है, ये अपने लिए नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैटर वेव्स होती क्या है। मैटर वेव्स यूजेस कंपोनेंट्स ऑफ एटम एट एटॉमिक लेवल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़ों को मैटर वेव्स देखती है। कंपोनेंट्स एट एटॉमिक लेवल, इस पर अभी भी कई रिसर्च चालू है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो वेव्स याद रखना है, दैट इज़ मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैंने आपको क्या बताया, दो चीज़ में उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट इज मीडियम एंड सेकंड इज वाइब्रेशन ऑफ मीडियम। सो मीडियम मतलब क्या है? जो मीडियम जिसको लगता है वेव को प्रोपोगेट होने के लिए, वो मैकेनिकल वेव। जिसको मीडियम नहीं लगता है वो नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में साउंड वेव्स, वेव्स ऑन वाटर, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, और नॉन मैकेनिकल वेव में लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब आगे। तो अभी देखते हैं, ये पहला मीडियम तो हो गया। अब जो देख रहे हैं सेकंड, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम। अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम देर आर टू वेव्स। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन ऑफ मीडियम का मतलब क्या है? अगर कोई मीडियम है वो किस तरह वाइब्रेट कर रही है उसके अनुसार डिस्टिंग्विश किया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स दोज आर। सो फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या होता है, दोज वेव्स इन विच द मीडियम और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीडियम, the constituents of medium vibrates in the direction of propagation of wave. इसका मतलब क्या है कि इफ़ आई टेक अ वेव, अगर वेव की ये डायरेक्शन है तो उसका जो मटेरियल मीडियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सबसे छोटे, जैसे ये कार्डबोर्ड के जो सबसे छोटे पार्ट्स है, पार्टिकल्स है, वो किस तरह वाइब्रेट करेंगे, ये डायरेक्शन में, इसके पैरेलल में डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो इसका एग्जांपल है साउंड वेव. साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव ऑल्सो एंड इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑल्सो. क्यों लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मीडियम के, वो हमेशा कैसे, लॉन्गिट्यूडनली, मतलब इसके पैरेलल में वो वाइब्रेट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव दैट दिस इज अपोजिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मीडियम, और यहाँ पे वो चीज़ पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. मतलब अगर वेव ऐसा जा रहा है तो जो मटेरियल मीडियम है वो ऐसे वाइब्रेट करेंगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे और इसमें पैरेलल. तो इट्स एग्जांपल इज लाइट वेव्स. देन वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स. गिटार के जो तार घिसते हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स वेव होते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट ऐसे करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं. देन यहाँ पे साउंड वेव्स है. हेयर स्प्रिंग, वेव्स ऑन स्प्रिंग भी हो सकता है. स्प्रिंग क्योंकि ऐसे कॉइल होती है, तो जब भी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो वही पैरेलल डायरेक्शन में ही मूव होती है, वो वाइब्रेट होती है, तो इसलिए वेव्स ऑन स्प्रिंग ऑल्सो. यहाँ पे और भी चीज़ें ले सकते हैं हम, वो आगे में देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें रहती है. तो यहाँ पे लाइट वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स एंड साउंड वेव्स. अब यहाँ पे देयर इज़ वन थिंग which is important, like waves produced by motorboat. These are both longitudinal wave as well and transverse wave as well. क्योंकि जब मोटर बोट है पानी में तो वो क्या करता है, जब यहाँ पे मोटर शुरू होता है तो ये वो इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करते हैं उसके, और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसलिए वो बहुत लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव है. सो दिस वाज द थिंग अबाउट longitudinal and transverse wave. Now we will look about parameters of wave. Parameters of waves या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. वेव की एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी इट्स वेवलेंथ, कि वेव में वेवलेंथ क्या है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज अबाउट frequency. What is the frequency? Like frequency of alternating current in India is 50 Hz. Alternating current की frequency 50 Hz है, और amplitude हो सकता है, speed हो सकता है. So first parameter or characteristic of wave is wavelength. So basically what wavelength is? If I consider it as an axis, ये एक वेव है, साइनोसोडियल वेव. I made a sinusoidal wave. तो साइनोसोडियल वेव है, तो इसमें जो वेवलेंथ है उसके लिए हमें ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड एज क्रेस्ट या एपेक्स, ठीक है, एंड इट इज़ ट्रफ. तो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो क्रेस्ट. सो वन वेवलेंथ बेसिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, वन वेवलेंथ, और इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स. सो ये क्रेस्ट चीज़ है, टॉप मोस्ट या एपेक्स पॉइंट, और ये नीचे वाला डेप्थ में सबसे लोवेस्ट पॉइंट इज ट्रफ. तो दो ट्रफ के बीच में एक वेवलेंथ या फिर दो क्रेस्ट के बीच में एक वेवलेंथ. तो वेवलेंथ को जो नापते हैं, और इट्स सिंबल इज लैम्डा. दिस इज लैम्डा एंड वेवलेंथ इज ये डिस्टेंस है, तो इसको मेजर किस में करते हैं, दैट इज मीटर ओनली. आई टोल्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर दैट 1 angstrom, because wave is very small and if you have to measure then meter will be very large unit. So small unit is 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10
मीटर. सो दिस इज़ 1 एंगस्ट्रॉम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है. तो वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स SI unit is meter, but it is measured in 1 angstrom. Then second parameter is frequency. What do you mean by frequency? Frequency is the number of cycles per second. Frequency is the number of cycles per second. एक कितनी cycles एक सेकेंड में निकालती है, that is called as frequency. Frequency is 1 upon time period होता है. So it is 1 upon second. इट्स यूनिट इज़ हर्ट्ज. हर्ट्ज में भी इसे लिखते हैं. सो क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने बताया. अब वेव्स के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी देखेंगे. सो इफ़ आई कंसिडर इट अ पॉइंट ए एंड दिस इज़ अ वेव, ये वेव जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट में कितने बार वेव पास हुई, ये स्टेशनरी पॉइंट में कितने बार वेव पास हुई, उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोलूँगा उसकी. तो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है. सो फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय न्यू. इट इज़ न्यू. ये न्यू से डिनोट करते हैं इसको. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज स्पीड ऑफ वेव. स्पीड ऑफ वेव, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ वेव. सो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ स्केलर और वेक्टर का फ़र्क है. आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं. तो स्पीड ऑफ वेव इज़ बेसिकली कैसे निकालेंगे, तो स्पीड क्या होता है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स इट इज़ वेवलेंथ ओनली, वेवलेंथ, एंड अपॉन टाइम मीन्स इट इज़ फ्रीक्वेंसी. दिस इज़ 1 upon t, सो इट इज़ फ्रीक्वेंसी. तो स्पीड क्या हो जाएंगी, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. सो ये स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू लेम्डा इंटू न्यू. सो दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कम्स ऑन दिस फॉर्मूला. If you have to calculate speed or you have to calculate velocity or frequency, this formula is very helpful. Then third aspect or third parameter of wave is amplitude. Amplitude means massiveness. It denotes massiveness. How massive a wave is, like this. So this massiveness ये कितना बड़ा है यहाँ से, उसको बोलते हैं amplitude. You have also learned about a thing that amplitude means amplifier is used whenever you place a DJ or a sound. Amplifier is there. What amplifiers do, it increases the massiveness of the wave so that volume is increased. So amplifiers are used to increase its amplitude or volume. So ये तो distance ही है, तो इसका यूनिट भी है मीटर. So amplifier are used to increase volume etc. कोई भी चीज़ को बड़ा करना है तो उसके लिए एम्पलीफायर यूज़ होता है. तो हम स्पेसिफिकली डे टू डे एप्लीकेशन में वॉल्यूम को देखते हैं. वॉल्यूम बढ़ाते हैं मतलब हम एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं. सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ वेव्स. Now the 2 important things here I want to tell you is about longitudinal and transverse wave. First is about longitudinal waves. I told you about crest and troughs, but those things are only for transverse wave. For longitudinal waves, crest and troughs changes. Like if I am speaking here, so what happens here are air molecules. तो क्या होता है, यहाँ से जैसे स्पीक कर रहा तो यहाँ पे जो चीज़ रहेंगी, यहाँ की जो एयर है वो डेंस हो जाएंगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे डेंस भी हो जाएंगी वो चीज़ और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ डेंसिटी कम रहेंगी क्योंकि एनर्जी वहाँ तक पहुँचने की. अभी यही चीज़ वाइब्रेट कर रही है, सिर्फ यहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम है और प्रोपगेशन अभी होने का है तो ये लेस डेंस है. दिस इज़ लेस डेंस और दिस इज़ मोर डेंस. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्रेशन. कंप्रेस हो गई है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज रेरिफैक्शन. सो वहाँ हमने जो देखे थे वो ट्रांसवर्स वेव के लिए था, दैट इज़ क्रेस्ट एंड ट्रफ. यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन होते. फॉर एग्जांपल इफ़ इट अ स्प्रिंग, सो ये जो चीज़ है ये कंप्रेशन हो जाएंगी, लेकिन ये जो चीज़ है दिस इज़ रेरिफैक्शन. फिर यहाँ से फिर से कंप्रेशन चालू हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज़ 1 वेवलेंथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव. और वहाँ पे 2 क्रेस्ट के बीच में उसको बोलते थे हम कि 1 वेवलेंथ है. यहाँ पे 2 कंप्रेशंस के बीच में 1 वेवलेंथ और 2 रिफ्रैक्शन के बीच में, यहाँ से यहाँ तक 2 रेरिफैक्शन के बीच में 1 वेवलेंथ. तो दिस मच यू हैव टू रिमेंबर, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन. This is the basic chapter. After that, when sound waves comes or heat waves or light waves, you will
feel very good, and those chapters are very important, and every year one question from light comes. So you have to focus in this chapter what is longitudinal, what are transverse wave, etc. Thank you.